Yes, students, in this session we have discussed first topic photodiode. Photodiode is a device which convert light energy into electrical energy. It is a PN junction diode which operate in forward biased. It works on the principle of photovoltaic effect. Yes. Now this is the forward bias, this is the reverse bias PN junction diode. So look, that is the block diagram of PN junction diode or photodiode. Yes, P region, N region, depletion region. Yes, depletion region. Now photodiode is a PN junction diode which operate in reverse bias. Yes, so we give the reverse biasing such that P region connect with negative terminal and N region connect with positive terminal and attach the key to on off the device. Yes, so that is PN junction diode or operating reverse bias act as a photodiode. Now how its working take place? Look, when light incident at the junction, that is the symbol of light travel in the form of packets of energy called photon. So we have discussed principle photovoltaic effect, conversion light energy into electrical energy. Photodiode basically PN junction diode operating reverse biased. Now let's discuss working. When light incident near the junction of diode, then near junction covalent bond break up and pair of electron and holes are released. Due to electric field of depletion region, holes separate in P region and electrons separate in N region. As a result, photovoltage is produced and current flows in the circuit. Yes. Now, why photodiode kept in reverse bias? By keeping the photodiode in reverse bias, it is easily to detect the change in current with change in light intensity. If we draw the characteristic curve for photodiode, so at x-axis current and at y-axis current and at x-axis voltage, and when we draw the characteristic curve, then it is obtained in that manner. When we use the intensity of light I1, then the graph between voltage and current is this. Is at that we take current, and when we take the intensity of light I2, then graph will be drawn in that manner. And when we use the light of intensity I3, current obtained in that manner, where I3 greater than I2 greater than I1. Yes. This why we use this coordinate for the IV characteristic of photodiode, because photodiode is reverse bias and characteristic of reverse biasing of PN junction diode we draw in third coordinate. Yes. Now तो देखो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है फोटोडायोड. फोटोडायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में. फोटोडायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. फोटोडायोड की अब देखिए वर्किंग के लिए पहले प्रिंसिपल. फोटोडायोड वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट. फोटोडायोड में का सर्किट देखिए, ये पीएन जंक्शन फोटोडायोड जस्ट पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये ब्लॉक डायग्राम पीएन जंक्शन डायोड का है. ये डिप्लेशन रीजन है, हमने पी रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और साथ में की कनेक्ट कर दिया ऑन ऑफ के लिए. अब देखिए वर्किंग. जब लाइट इंसिडेंट हुई नियर जंक्शन
तो लाइट इंसिडेंट होने का मतलब ग्रुप ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हुए। सो जब लाइट इंसिडेंट हुई नियर जंक्शन तो लाइट फोटोन की एनर्जी से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हुए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिलीज हुए। डिप्लेशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स सेपरेट हो गए पी रीजन में और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए एन रीजन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स के सेपरेशन से फोटो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ और करंट सर्किट में फ्लो हुआ। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमने फोटो डायोड को रिवर्स में क्यों रखा? क्योंकि रिवर्स में रखने से इट इज इजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन करंट विद चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। इस फोटो डायोड, नाउ लेट्स यू डिस्कस यूज फोटो डायोड can be used as a photo detector to detect the optical signals। फोटो डायोड का यूज बच्चों हम फोटो डिटेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं लाइट सिग्नल को, ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखिए, ये है IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फोटो डायोड। वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया है, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमने I1 इंटेंसिटी की लाइट ली तो ग्राफ ये बना, जब I2 कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो I2 इंटेंसिटी की लाइट ली तो ये ग्राफ बना, I3 इंटेंसिटी के लिए तो ये, जहां I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। यस, सो दिस इज द, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डायोड। नाउ लो नेक्स्ट टॉपिक। यस, लुक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस इन व्हिच चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड by the light photons or photon excitation. These devices are called optoelectronic devices, optoelectronic junction devices. Example: photodiode, LED, photovoltaic devices like solar cell. There are following functions of optoelectronic junction devices. First, in photodiode, convert light signal into electrical signal. LED, light emitting diode, convert electrical energy into light energy. And photovoltaic devices like solar cell convert optical radiation, energy of optical radiation into electrical energy. Yes, तो देखो बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें कि चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं लाइट फोटोन से या फोटोन एक्साइटेशन से। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस के LED, फोटो डायोड, सोलर सेल एक्सेट्रा। इसके फोटो डायोड आपके ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट, फोटो डायोड में फोटो डायोड कन्वर्ट करता है आप लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। LED कन्वर्ट करता है, LED का फंक्शन है, LED कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। फोटोवोल्टिक डिवाइसेस लाइक सोलर सेल कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन लाइक सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, नाउ लुक नेक्स्ट टॉपिक। यस, नाउ LED is a light emitting diode. It is a PN junction diode which can work in forward biasing. It convert electrical energy into light energy. So look, it is a forward bias PN junction diode. So if we draw the circuit, that is the PN junction LED. So this is a PN junction diode, and it contain, that is the load resistance, and it contain forward bias, that's why negative N region connected with negative terminal and P region connected with positive terminal. Thus we can, that is the general circuit of the LED. Now LED convert light energy, electrical energy into light energy. Yes, electrical energy into light energy. So yes, so let's discuss its working. That emit light in the form of photon. Yes, so now working, how LED work. When current flows to the LED, then near junction
due to recombination and diffusion of electron and holes, energy released in the form of light. Thus electrical energy change into light energy. Now if we draw the IV characteristic of LED, LED is a forward bias PN junction diode. So IV characteristic of LED is same as the characteristic of forward bias PN junction diode. So this is the IV characteristic of the LED because it is a forward bias PN junction diode. So it obtains the IV characteristic similar to the forward bias PN junction diode. Now LED can emit different types of color and different amount of light. If we want to increase the intensity of emitted light can be increased by increasing the forward bias voltage, and color of light emitted by LED can be changed by using the suitable material of suitable band gap to make the LED. Yes, so intensity of emitted light through LED can be controlled by changing the forward bias voltage, and color of light emitted by LED can be controlled or changed by using a material of suitable band gap. Yes. Now different type of color of LED, we use different type of material to make the LED of that band gap. Yes, to make visible LED we use a material in which band gap is nearly 1.8 electron volt, and to make the red LED which emits red light, we use a material compound of gallium arsenide in which its composition is 0.6 and phosphorus 0.4 GaAs, gallium arsenide phosphide is have a ratio in that manner. It is used to make red LED which have a band gap in this compound. Band gap is nearly 1.9 electron volt. And to make the infrared LED, yes, that is for red LED, and to make the infrared LED we use a material gallium arsenide. Yes, we use a material gallium arsenide, yes, which have a band gap nearly 1.4 electron volt. Yes, it has band gap nearly 1.9 electron volt, and it has band gap nearly 1.4 electron volt. Yes. So now what are the uses of LED? LED used in optical communication, LED used in remote controls, LED used in the burglar alarm systems. Yes. तो देखो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं LED मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। यस, ये LED इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है। ये सर्किट देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड है, LED जिसे हमने फॉरवर्ड में दिया है, पी रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन रीजन को नेगेटिव से, लोड रेजिस्टेंस है। अब इसकी वर्किंग पे ध्यान दीजिए। वर्किंग, जब LED से पीएन जंक्शन डायोड से करंट फ्लो होता है तो नियर जंक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन और डिफ्यूजन से एनर्जी रिलीज होती है फोटॉन्स की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट को कंट्रोल करने के लिए हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को चेंज करके हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं जो LED इमिट कर रही है। और LED के द्वारा जो लाइट इमिट हो रही है उसके कलर ऑफ इमिटेड लाइट को चेंज कर सकते हैं हम।
बाय यूजिंग ए सुटेबल मटेरियल ऑफ बैंड गैप। यस, हम ऐसा मटेरियल यूज करें जो सुटेबल मटेरियल का हो, जो बैंड गैप के ऑर्डर का हो, जो लाइट इमिट होनी है। क्योंकि जो लाइट इमिटेड, यस, इमिटेड द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट emitted in the form of photon, so it is equal to energy of photon Hc upon lambda should be equal to band gap of the suitable material। yes, जो एनर्जी इमिट हो रही है उसके जो एनर्जी इमिट हो रही है, लाइट इमिट हो रही है, तो फोटॉन्स की फॉर्म में हो रही है। जो फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है Hc अपॉन लैम्डा, ये बैंड गैप के ऑर्डर की होनी चाहिए। यस, बैंड गैप के ऑर्डर की होती है, यानी कि आप जैसा मटेरियल लेंगे, जैसे बैंड गैप का मटेरियल लेंगे, उसी बैंड गैप की एनर्जी का फोटोन इमिट होगा एलईडी से। यस, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट है, ए जी एनर्जी बैंड गैप ऑफ द मटेरियल यूज इन एलईडी है, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। यस, तो देखिए, यस, अब हम रेड एलईडी यूज बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, ये होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जिसमें ये रेशो 0.6 और 0.4 ये रेशो के फॉर्म में दे रखा है। आपका जो यूज होना है मटेरियल कंपाउंड में, एनर्जी गैप नियरली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का, और इंफ्रारेड एलईडी के लिए हम यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड, जिसमें बैंड गैप होता है आपका नियरली 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, दैट इज द 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ऑफ एलईडी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑफ दैट बैंड गैप यूज होते हैं आपके। अब बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक का। तो एलईडी सिमिलर टू फोटो डायोड है। एलईडी आपका सिमिलर टू फोटो डायोड नहीं, एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है। तो जब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होगी। तो ये ग्राफ है आई और वी का, जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक बताता है एलईडी की। यस, जैसे जैसे वोल्टेज चेंज कर रहा है, करंट इस ऑर्डर में चेंज हो रहा है, ये कहलाएगा आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी। यस, एलईडी की वर्किंग और फोटो डायोड की वर्किंग टोटली रिवर्स है, टोटली डिफरेंट है। एलईडी कन्वर्ट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, जबकि फोटो डायोड कन्वर्ट करता है आपका लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है और एलईडी फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। अब बात करते हैं एलईडी के यूजेस के। एलईडी आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है। एलईडी का यूज आप रिमोट कंट्रोल्स में कर सकते हैं। एलईडी का यूज बर्गलर अलार्म में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट पर्पस के लिए हम एलईडी का यूज कर सकते हैं। यस, नाउ एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर incandescent low power lamps is first advantage, it can be work at a low voltage, it have a less power consumption, it have a long life. Yes, it have fast action, it is no time, it does not require any warm up time required. Yes, so it is a shock proof, compact in size, light in weight. So these are the advantage of LED over incandescent low power lamps. Or now what advantage of LED, same as the advantage of semiconductor. If we discuss the advantage of semiconductor devices are required low operational voltage, less power consumption, shock proof, compact in size, light in weight, and fast action, no warm up time required. Means to say advantage of LED similar to the advantage of semiconductor devices, because LED is also a semiconductor device. Yes, तो देखो बच्चों, LED के एडवांटेज लो पावर, LED के एग्जांपल्स हैं वो इनकैंडेसेंट लो पावर लैंप्स के ऊपर जो एग्जांपल है। LED के एडवांटेज इनकैंडेसेंट लो पावर लैंप्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से LED लो पावर इनकैंडेसेंट लैंप्स से ज़्यादा बेटर है। तो हम पहला एडवांटेज डिस्कस करें तो ये लो वोल्टेज ऑपरेटेड है, लेस पावर कंजम्पशन है, फास्ट एक्शन है,
नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड है एलईडी के लिए, शॉक प्रूफ है, कॉम्पैक्ट इन साइज है, लाइट इन वेट है, लॉन्ग लाइफ है, रगडनेस है, इसमें शॉक प्रूफ है। अब बच्चों जो एलईडी के एडवांटेज हैं वही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के भी एडवांटेज हैं ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। यस, क्यों? क्योंकि एलईडी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो हम इन्हीं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एडवांटेज ओवर वैक्यूम ट्यूब्स को डिस्कस करें। यस, एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ओवर वैक्यूम ट्यूब्स डिस्कस करें तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस शॉक प्रूफ है, लाइट इन वेट है, कॉम्पैक्ट इन साइज है, लो पावर कंजम्पशन है, यस, लो ऑपरेशनल वोल्टेज है, फास्ट एक्शन है, नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड है, यस, एंड लॉन्ग लाइफ है। So students, in this session we have discussed about LED, photodiode and advantage of LED or semiconductor devices and optoelectronic junction devices. Thank you.